Good morning, students. Today we are going to start a chapter of class 10th, that is acids, bases, and salts. And students, today I'll discuss the introductory part of the this chapter, that is part 1, and I'll discuss in this acids. Students, let's start. Acids. In a sense, you may have tasted many substances. बहुत सारी substances आपने क्या टेस्ट किए होंगे, and some of them you have found sour, और कुछ को आपने क्या पाया होगा बेटा कि खट्टे हैं, और दो substances जो हैं they are regarded as acids. So students, the substances with sour taste are regarded as acids. For example, lemon juice, vinegar, जो आप सिरका कहते हैं बेटा, that is very very dilute acetic acid rather. Grapefruit juice is there, a spoiled milk, etc. You know, they all taste sour, and they are your acidic in nature. Yeah, you can say they are your acids. They are having acids rather. Many substances can be identified as acids based on their taste. कि हम टेस्ट को बेस मानकर चलते हैं कि जो भी चीजें खट्टी हैं, which are sour, they are all acids. But some of the acids like sulfuric acid is there, hydrochloric acid, that is HCl, nitric acid, that is HNO3. They have very strong action on the skin, which means they are corrosive in nature. Means those acids, they can burn the skin. मतलब वो आपकी स्किन को क्या कर सकती है बेटा, बर्न कर सकती है. रादर बेटा, अगर आप क्या करें, इफ यू पुट सम एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, या you can say concentrated sulfuric acid on your palm, what will happen? Black mass will be left there. That will remove all the water content from the skin. So it means ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट. Then what can be the definition of the acid? बेटा, ऐसे सब्सटेंसेस जो आपके H पॉजिटिव आयंस देते हैं एक्वा सॉल्यूशंस में, वो क्या कहलाते हैं? आपके एसिड्स. जैसे HCl है बेटा, HCl क्या देगा वाटर में? क्या देगा? ये H मीन्स एक्वा सॉल्यूशन में इज दैट क्लियर, या इन लिक्विड स्टेट दे विल गिव यू द H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन. H2SO4 भी क्या देगा? आपके H पॉजिटिव आयन एंड योर सल्फेट आयंस. सो ऐसे जो भी सब्सटेंसेस हैं बेटा, जो आपके क्या करते हैं, विच फॉर्निश यू H पॉजिटिव आयन, दे आर ऑल एसिड्स. और एक टर्म यहाँ यूज किया गया है बेटा, दैट इज एक्वा सॉल्यूशन. एक्वा सॉल्यूशन मीन्स solutions of these acids in water. Aqueous means water, means aqueous word जो है बेटा, word aqua से आया है. Aqua means water. Okay, then what can be the definition? Now, an acid may be defined as the substances which release one or more H positive ions in aqueous solution. They're all acids. देखिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी सब्सटेंसेस H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं एक्वा सॉल्यूशन में, दे आर ऑल योर एसिड्स. लाइक HCl इज देयर, नाइट्रिक एसिड इज देयर, एसिटिक एसिड इज देयर. क्लियर? सो दे आर ऑल, यू कैन से, एसिड्स. एंड बेटा ये जो एसिड्स हैं, दे आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस. नेचुरल सोर्सेस से हमें ये मिलते हैं. ओके, on the basis of sources, on the basis of the source, we can classify the acids into two different types. One is your mineral acid and other is your organic acid.
मीन्स ऐसे एसिड्स जिनका ओरिजिन जो है, जिनका सोर्स जो है क्या है, रॉक्स हैं या मिनरल्स हैं, दे आर योर मिनरल एसिड्स. Acids which are obtained from rocks and minerals are called mineral acids. There are large number of examples of mineral acids such as carbonic acid, H2CO3 beta. ठीक है, it is present in the soft drinks, like Limca, etc. Coke is there, Pepsi is there. In that carbon dioxide is dissolved in water, and that gives you this carbonic acid beta. And that is also one of the constituent of our gastric juice in the stomach, and it is used in the tanning industry. Then comes your nitric acid, HNO3. Nitric acid is used in the manufacture of the explosive. मीन्स एक्सप्लोसिव्स की जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें आपका इसका यूज होता है बेटा. वन इज TNT इज देयर, ट्राई नाइट्रोटॉल्विन, TNT, ट्राई नाइट्रोटॉल्विन. देन योर नाइट्रोग्लिसरीन and the fertilizers also beta, that is also used in the fertilizers industry, just to prepare the fertilizers like ammonium nitrate, calcium nitrate, and also used in the purification of gold and silver metals. Gold AU, silver AG beta. Then your hydrochloric acid beta, HCl. This is used in the purification of common salt, and it is also used in the textile industry as a bleaching agent. Bleaching agent means just to decolorize the something. So it is also used to make aquaresia. Aquaresia is the mixture of HCl and HNO3 in ratio 3:1. मीन्स 3 पार्ट्स आपके बेटा HCl के हैं और 1 पार्ट आपका HNO3 का है. एंड दिस aquaresia is used to clean the gold. And तो आपका क्या होता है, द गोल्ड कैन बी डिजॉल्व, मतलब टू सम एक्सटेंट इट गेट्स डिजॉल्व इन दिस aquaresia. Then next is your sulfuric acid, H2SO4. The sulfuric acid is regarded as king of chemicals. That is regarded as king of chemicals और कॉमनली यूज्ड इन कार बैटरीज. मीन्स जो भी हमारी कार बैटरीज होती हैं उनमें आपका क्या होता है बेटा, H2SO4 होता है. और इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट्स एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स. एंड बेटा इन पेंट्स, प्लास्टिक्स एंड ड्रग्स में भी आपका ये यूज होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड. और आर्टिफिशियल जो आपकी आर्टिफिशियल सिल्क होती है बेटा, एंड इन यू कैन से पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी आपका इसका क्या रहता है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड का यूज रहता है बेटा. देन कम्स योर फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4. दिस फॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड एज एन anti-rust paints and in your fertilizers also, just to prepare the phosphates. Then next comes your organic acids. ऑर्गेनिक एसिड का जो ऑरिजिन है बेटा, दैट इज योर प्लांट एंड एनिमल्स. सो हम कह सकते हैं कि बेटा एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स. सम ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन ओवर हियर, लाइक फॉर्मिक एसिड इज देयर. और ये बेटा ये क्या है, दे आर ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड COH. Is that clear? चलिए later on we'll discuss this thing. Formic acid that is HCOOH. इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, HCOOH. And it is found in the sting of ants. इसका नाम जो फॉर्मिक एसिड पड़ा बेटा, वो क्यों पड़ा, फॉर्मिका मीन्स आंट. जब आपकी जो आंट जो है, मतलब ये क्या करती है, स्टिंग करती है, काटती है बेटा, तो इट रिलीजेस द एसिड दैट इज ऑफ फॉर्मिक एसिड. दैट्स व्हाई
it is called your formic acid, that is otherwise it's a methanoic acid. IUPAC नेम जो है बेटा इसका मैथेनोइक एसिड है. तो फाउंड इन द स्टिंग्स ऑफ ants and bees, used in the tanning of leather. और बेटा it is also used as medicine for treating gout etc. Then your acetic acid, it is commonly found homes in the form of a vinegar सिरका. विनेगर का जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूंट है बेटा दैट इज एसिटिक एसिड, बट दैट इज वेरी 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 डाइल्यूट. नाउ CH3COH इज देयर. अभी मैंने क्या कहा कि इट्स इज फाउंड FOUND बेटा इन विनेगर and used as a solvent in manufacturing of dyes and perfumes. Dyes और perfumes की manufacturing में हम इसको use करते हैं बेटा. Then comes your lactic acid. Lactic acid here formula is there, that is responsible for souring of milk in the curd. जो आपकी मिल्क जो है आपका जो सार होता है कर्ड में, इस देख ले जब कर्ड बनता है मिल्क से तो that is having some sour taste, and that is due to the presence of this lactic acid beta. Benzoic acid is there, is the formula is there. Benzene के साथ COH beta, C6H5COH, that is used as a preservative. इसके जो salts हैं बेटा they are used as preservative rather. Sodium benzoate is there, that is one of the preservative. जो भी आपके क्या हैं menstruations हैं, squash समझते हो, जूसेस हैं, उसमें हम सोडियम बेंजोएट जो है एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं सो दैट इट कैन बी केप्ट फॉर द लॉन्ग टाइम, ताकि इनको ज़्यादा समय तक हम प्रिजर्व कर सकें बेटा. सिट्रिक एसिड इज देयर, जनरल फॉर्मूला दैट इज C6H8O, एंड सिट्रिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन लेमन्स, ऑरेंजेस, सिट्रस फ्रूट्स, मीन्स जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं क्लियर, उनमें सभी में आपके क्या रहेगा, आपका सिट्रिक एसिड विल बी देयर. So next beta, chemical properties of the acids. Now first that is action with metals. Okay beta, always remember जो भी ज़्यादा एक्टिव मेटल्स हैं like alkali metal is there, alkaline earth metal is there, clear. या अगर आपने छोटी क्लास में या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसमें आपने एक्टिविटी सीरीज की है तो हाइड्रोजन के ऊपर जो भी मेटल्स हैं एक्टिविटी सीरीज में क्लियर, जो आपकी ज़्यादा रिएक्टिव हैं क्लियर, वो क्या करेंगी, सारी की सारी आपकी हाइड्रोजन लिबरेट करेगी आपकी एसिड से क्लियर. सो नाउ हियर जस्ट सी डाइल्यूट एसिड्स लाइक डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द सर्टेन एक्टिव मेटल्स. एक्टिव मेटल्स कौन सी हुई, जो आपकी एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं बेटा, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही कम है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है. वो क्या करेंगे, दे विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द एसिड्स, हाइड्रोजन गैस वो इवॉल्व करेंगी. तो फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम मेटल बेटा, सोडियम मेटल इज वेरी वेरी रिएक्टिव, इवन इट रिलीजेज हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर. ठीक है, वाटर में अगर हम सोडियम मेटल को डालें बेटा तो ये क्या देता है, NaOH एंड योर हाइड्रोजन गैस, और ड्यू टू फ्रिक्शन दिस हाइड्रोजन सो इवॉल्व जो है आपकी वो क्या करती, दैट कैचेस फायर. तो आप देख सकते हैं कि पानी में आग लग गई, सुना कभी, नो. ओके बेटा, आई एम कमिंग बैक टू द एसिड. Now just say here Na, that is sodium, is reacting with your dilute HCl. क्या दे रहा है आपको, NaCl, that is salt, and your H2. Okay, 2 should be as a subscript beta. So here hydrogen gas is evolved. So here magnesium, that is also active metal beta, H2SO4, dilute sulfuric acid is there. ये क्या दे रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट दे रहा है और हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. और बेटा अगर एक्टिविटी सीरीज ज़्यादा डिटेल में करनी है तो यू जस्ट वॉच माई वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है, बहुत इंजॉय करेंगे आप उस वीडियो को देखकर. दैट इज़ ऑफ योर क्लास +2, लेकिन दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फ्रॉम द लोअर लेवल. इवन क्लास 10th में भी आपको ये यूजफुल हो सकता है बेटा, just to discuss these chapters. Okay, then metals which can displace hydrogen
from dilute acids are known as active metals. मतलब जो क्या कर सकती है बेटा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है, कहाँ से, डाइल्यूट एसिड से, उन मेटल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्टिव मेटल्स। और ये कौन सी हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, इस देख लिया, जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एटसेट्रा। Clear? There are a large number of metals which are very active metals which can displace hydrogen from the acids. So beta, they are your, you can say, active metals. So active metals means more reactive metals. ठीक है. For example beta, let's say zinc is there. Zinc and dilute sulfuric acid ये क्या दे रहा है आपको, जिंक सल्फेट और H2. Then the active metals, ये काफी बार मैंने डिस्कस कर लिया बेटा. द एक्टिव मेटल्स विच लाई एबव द हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. Electropositive in nature means they have tendency to lose the electrons. एक्टिव मेटल, जितनी ज्यादा एक्टिव मेटल होगी बेटा, रिएक्टिव मेटल होगी, उसकी उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की. मीन्स उनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा. इज दैट क्लियर? सो बेटा, अब इनकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इसी वजह से उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स. सो ये क्या है, जो आपकी मेटल्स होती हैं, वी कैन से दे आर योर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स. जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो बेटा क्या बना दिए उसने, पॉजिटिवली चार्ज आयन रह गए पीछे, जिनको हम क्या कहते हैं, कैटायंस. छोटी क्लासेस 9th में किया होगा आपने. ओके, जस्ट सी देयर एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, और यही पॉजिटिव आयंस क्या कहलाते हैं बेटा, आपके कैटायंस. एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय, और जब ये मेटल्स आपकी क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन देगी, तो ये जो आपके प्रोटॉन्स हैं, जो आपको कौन दे रहे हैं, ये एसिड्स, ये एक्सेप्ट करेंगे, और ये क्या दे देगा, H एटम, और H एटम दूसरे H एटम के साथ H2 दे देगा. एज अ रिजल्ट योर हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. मैंने आगे भी लिखा हुआ है इस चीज को. बेटा, मान लिया जिंक, अब मैंने क्या कहा, आप जिंक क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज लूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन. और आपको पता है बेटा कि एटम आपके न्यूट्रल होते हैं, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए थे इसके ऊपर, पीछे क्या बच गया, 2 पॉजिटिव चार्ज बच गया. तो जिंक इज गिविंग यू 2 इलेक्ट्रॉन्स, और आपको क्या दे रहे हैं, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस बेटा. और ये कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन में. सो नाउ, अब बेटा आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या होगा, दैट विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन. और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 नहीं होगा, कैसे होगा, H पॉजिटिव आयंस होंगे और सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस होंगे. दिस वाज सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव. और ये क्या है, एक्वस, AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस, मींस वाटर में है ये. अब ये मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन आपके क्या जिंक ने दिए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, और ये इलेक्ट्रॉन्स किसने दिए, इस H पॉजिटिव आयन ने बेटा. 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या दे दिया, H2. क्लियर? और आपका सल्फेट आयन बच गए. अब हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं. मींस रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट एंड साइड, और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट एंड साइड लिख देंगे हम. जब हम ऐड करेंगे तो सेम आयंस, सेम मेटल्स, और यू कैन से वो क्या है, यहां जो आपका सेम आयन है बेटा, वो क्या है, सल्फेट है. दिस इज ऑन द रिएक्टेंट साइड, दिस इज ऑन द प्रोडक्ट एंड साइड, तो दे विल गेट कैंसल्ड जब हम आपका ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे. फॉर दैट लिखा हुआ मैंने यहाँ, जस्ट सी जिंक, this is your reactant over here, then reactant here, 2H positive ion, 2S positive ion. तो सल्फेट यहाँ इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि दैट इज ऑल्सो ऑन द प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड लिखना पड़ता, तो दे गॉट कैंसल्ड. इज दैट क्लियर? सो बेटा ये क्या दे रहा है आपको, जिंक 2 पॉजिटिव आयन. नाउ दिस इज जिंक 2 पॉजिटिव आयन, दैट इज ऑन द प्रोडक्ट एंड साइड, हियर इट इज रिटन. और H2, this is on the product side, that is also written on the product side over here. So this is the overall reaction, that is a combination of these two reactions. So beta, just see how the metal is losing the electron or
हाउ दिस प्रोटॉन इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। तो क्या होना चाहिए बेटा, ऐसे मेटल्स हाइड्रोजन लिबरेट करेंगी जो क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन दे सकती है। अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकती, लाइक सिल्वर इज देयर, गोल्ड इज देयर, ठीक है, तो दैट विल नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, वो आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे। तभी हम कहते हैं कि एक्टिव मेटल जो हैं दे कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट action with the metal oxides. Metal oxides, MO, let's say MO, metal oxides. ओके बेटा, ये जो आपके एसिड्स हैं दे रिएक्ट विद द मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। ये क्या बनाते हैं, आपके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं जब आपके किसके साथ एसिड रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स के साथ। तो क्या दे रहे हैं ये, सॉल्ट एंड वाटर। और बेटा इन रिएक्शंस को हम कैरी आउट करते हैं बाय हीटिंग, ठीक है, मीन्स वी हैव टू हीट। ओके, सपोज यू आर दिस जिंक ऑक्साइड एंड HCl। लेट्स से जिंक ऑक्साइड इज गोइंग टू रिएक्ट विद योर HCl, क्या दे रहा है ये आपका ZnCl2, बेटा 2 इज वेरी वेरी स्मॉल हियर, क्लियर। सो दैट इज ZnCl2, जिंक क्लोराइड एंड वाटर, वाटर में भी 2 वेरी स्मॉल बेटा H2O। सो अब नाउ वन थिंग मोर बेटा, ये जो मेटल ऑक्साइड आपने नॉन मेटल मेटल में पढ़ा होगा, अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया लेकिन बहुत जल्दी मिल जाएंगे आपको बेटा। ये जो मेटल ऑक्साइड हैं ये क्या है, दे आर योर बेसिक इन नेचर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, वेयर एज नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या रहते हैं, आपके एसिडिक इन नेचर रहते हैं। सो सिंस दे आर बेसिक इन नेचर, सो दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद द एसिड। अगर ये भी आपके एसिडिक इन नेचर होते तो आप इसके साथ नहीं रिएक्ट करते। So, since these metal oxides are basic in nature, that's why they are going to react with the acids to give you salt and water. Salt and water. Okay, beta. Similarly, your magnesium oxide is there. Here, वो क्या दे रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ क्या दे रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट दे रहा है MgSO4, और आपका H2O दे रहा है, अगेन सेम। देन कम्स योर कॉपर ऑक्साइड इज देयर बेटा, रादर इट्स योर cupric oxide. I'm using the word cupric. अगर ये Cu2O होता बेटा देन इट वुड बी cuprous। बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज को, अभी कॉपर ऑक्साइड की बात करें हम। तो ये क्या है, HCl के साथ बेटा जब ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है, CuCl2 और वाटर दे रहा है। तो मीन्स हम जनरली कह सकते हैं कि बेटा मेटल ऑक्साइड के साथ जब भी आपका एसिड रिएक्ट कर रहा है वो आपको क्या दे रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। क्या दे रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। सो होप दिस इज क्लियर बेटा। ओके, नाउ कॉपर ऑक्साइड जो है बेटा दैट इज क्यूप्रिक ऑक्साइड, दैट इज ब्लैक, क्लियर। जब HCl में डाला हमने इसको तो क्या दे दिया इसने, ब्लूइश ग्रीन कलर्ड, यू कैन से क्यूप्रिक क्लोराइड दे दिया। अगेन यहाँ भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की क्या है, +2 है, लेकिन चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात हम बाद में करेंगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि सर क्या बोल रहे हैं। ओके बेटा, both metal carbonates and bicarbonates we can say react with the acid to evolve carbon dioxide gas and form the salts. Means acids beta, always remember acid जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेंगे, किससे, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से। अब जैसे हियर कैल्शियम कार्बोनेट इज देयर, HCl के साथ बेटा कैल्शियम क्लोराइड दे रहा है बेटा और वाटर, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड। देन योर सोडियम बाइकार्बोनेट इज हियर NaHCO3, ये क्या दे रहा है आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बेटा, इट इज गिविंग यू दिस क्या, सोडियम सल्फेट एंड H2O एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हियर, ये यहां आ गई है बेटा। इस देख मीन्स आपका कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स ऑलवेज इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रिएक्ट विद द एसिड्स। होप क्लियर बेटा। तो एक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट्स क्या रहेगा बेटा एसिड्स का, कि दे विल इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। सो होप दिस इज क्लियर बेटा। एक्शन विद बेसिस, ऑब्वियस बेसिस के साथ जब आपके एसिड्स रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, दे विल न्यूट्रलाइज योर एसिड्स, इज दैट क्लियर। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या रहता है बेटा,
आप जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है आपको, सॉल्ट एंड वाटर, और हीट इज प्रोड्यूस्ड, और आपका जो रिएक्शन रहेगा वो क्या रहेगा आपका एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स ऐसे रिएक्शन जहां आपकी क्या होती है बेटा, हीट इज इवॉल्व। सो बेटा acids react with the bases to give salt and water. For example, here, this is strong acid HCl reacts with a strong base NaOH and gives you NaCl, that is salt and water. So, और आपका lot of heat is produced बेटा। अगर आप क्या करें, इसको टेस्ट ट्यूब में लें HCl और उसमें NaOH डाल दें, स्लोली डालें पर, है ना, इज दैट क्लियर, क्यों, बिकॉज इंटेंस हीट इज प्रोड्यूस्ड। अगर एकदम डालेंगे तो इट कैन फ्लैश आउट, इज दैट क्लियर, दैट कैन स्पॉइल योर स्किन, इज दैट क्लियर, दैट कैन बर्न यू, दैट कैन हार्म यू, इज दैट क्लियर। सो बेटा ये क्या दे देता है आपको, सॉल्ट दे देता है, एंड देन योर वाटर इज प्रोड्यूस। सो मीन्स ये रिएक्शन क्या हुआ वैसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज दे आर योर एक्सोथर्मिक इन नेचर, मीन्स प्रोड्यूस हीट or energy, you can say. Okay beta, then comes your strong and weak acids. Okay beta, strong acids like जो भी आपके मिनरल एसिड्स की हमने बात की थी, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे आर योर, you can say strong acids. Means ऐसे acids which are completely ionized in water. Is that clear? They are called your strong acids. Is that clear? So acids which are completely ionized in water are known as strong acids. Example यहाँ दे रखे हैं बेटा, hydrochloric acid is there, sulfuric acid is there, nitric acid is there, they are all strong acids. अब HCl पानी में क्या देगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दे रहा है, देखिए, इज दैट क्लियर। और सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर क्या दे रहा है, H पॉजिटिव और सल्फेट। पहले भी कहा था कि वाटर में ये एसिड्स क्या रहेंगे बेटा, दे विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस, that's why they are your strong acids, means complete dissociation, complete ionization is there. Then weak acids बेटा, जो भी आपके you can say organic acids हैं बेटा, they are generally weak acids, is that clear? Like you can say formic acid, organic acids की मैं अगर बात करूं, formic acids there, acetic acids there, मतलब carboxylic acids, they are all weak acids. Carbonic acid beta exception, that is a mineral acid but it is a weak acid. Phosphoric acid is there, again weak acid, is that clear? H2CO3 and then your H3PO4, that is a phosphoric acid. और ये बेटा इनकी आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी, पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, मीन्स मान लिया इफ 100 मॉलिक्यूल्स आर देयर, सपोज 50 आर गोइंग टू डिसोशिएट and 50 are they are present in the form of molecules, as they are not going to dissociate. So it means they are your weak acids. तो ऐसे acids बेटा, the acids which are weakly ionized in water are known as weak acids. क्या कहते हैं हम उनको, weak acids. अब देखिए एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं, पानी में डाला क्या दे रहा है आपको, CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। बेटा यहाँ साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी होना चाहिए, मीन्स ये एरो इस साइड को भी है और बैक साइड भी है, एंड यहाँ क्या होगा, ये एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अभी एग्जांपल दिया कि मान लिया 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 50 क्या कर गए, डिसोशिएट करके, और 50 इस तरह रह गए। तो बेटा इस मिक्सचर में आपके क्या रहेंगे, CH3COH भी होगा और CH3CO नेगेटिव भी होंगे और H पॉजिटिव भी होंगे, मीन्स आपके सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं एसिटिक एसिड के डिसोशिएट नहीं हो रहे, दैट्स व्हाई दैट इज अ वीक एसिड. देन कम्स योर यू कैन से, ओके बेटा अभी हमने बात की स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की, वीक एसिड की बात की, और मिनरल एसिड्स की बात की, और ऑर्गेनिक एसिड की बात की। तो हम जनरली हम क्या कह सकते हैं बेटा, जो आपके मिनरल एसिड्स हैं दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इज दैट क्लियर, और जबकि ऑर्गेनिक एसिड्स हैं दे आर योर वीक एसिड, जो अभी मैंने पहले भी बात की। सो थैंक यू, होप यू हैव enjoyed the lecture, or we'll meet in the next lecture with the basis. Is that clear? So beta keep studying.